Previous class में we were discussing about formation of ionic lattice और formation of ionic lattice आज मैं आपको करवा रहा हूँ Born-Haber cycle for formation of lithium oxide. So now let me start. We are starting with lithium solid having 2 taking twice and half of O2 gaseous. Now the first step was atomization of metal, and metal is converted into gaseous atom while there is no change in oxygen, and this is atomization, and this is atomization of lithium multiplied by 2. And why we are taking multiply by 2? Because atomization is always for 1 mole. Now if you have 2 mole of lithium and you want to convert 2 mole of lithium into lithium atom, तो फिर आपको double energy required हो. You should multiply by 2. After that, the process of ionization will occur and lithium will lose 1 electron each. So the total number of electrons which we have here are 2 electrons plus half O2 gaseous. 1 lithium will remove 1 mole of electron, second lithium will remove second mole of electron. So this is known to be first ionization energy, and first ionization energy is multiplied by 2 because ionization energy is for 1 mole and here we are taking 2 moles. So this step is a step representing ionization energy of lithium. Now in the next part, this oxygen is converted into atom. Now this is atomization of non-metal. So this equation is representing atomization of oxygen. अच्छा, यहां तक तो वैसे ही है जैसे हम डिस्कस कर रहे थे. But now in case of oxygen, the next step is a step of gain of electron, a step of electron affinity. But as you know, oxygen will gain 2 electrons. So if oxygen needs to gain 2 electron, तो पहले एक electron add होगा and then we will add second electron. So here first electron affinity as well as second electron affinity, both electron affinities are involved. First and second, both electron affinities are involved. 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इन्वॉल्व होंगी. अब प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल इज एक्सोथर्मिक while second electron affinity is always endothermic. That means the electron affinity we will show separately. We will show electron affinity separately, first को अलग और second को अलग. But the arrow, direction of arrow of first electron affinity is downward because first electron affinity is exothermic, while second electron affinity is endothermic. तो अब जब आप यहां पर एरो बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप जो है वो डाउनवर्ड शो करोगे एंड
there are 2 lithium, आप डाउनवर्ड शो करोगे, there are 2 lithium ion gaseous plus 1 electron plus O negative gaseous. What does it represent? It represents gain of 1 mole of electron, and when 1 mole of electron is added, then this equation represents first electron affinity, which is exothermic in nature. First electron affinity, which is exothermic in nature. तो हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक्सो होगी, एरो डाउनवर्ड होगा. And now we will make another arrow upward, और वो जो अपवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कि प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, and the second electron is added to oxygen, it turns to O2 negative gaseous. And now this step is known to be second electron affinity. This step is known to be second electron affinity. So first electron affinity is exo and the second electron affinity is endo. एक बात और बता दूं, कभी कभार एग्जामिनर फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक साथ बना के शो कर देता है. अब मैं ये पॉइंट जो आपको बता रहा हूं कि सम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर आप सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम करेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सो होती है, बाकी सारी एंडो होती है. तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज का जो सम है, अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इन्वॉल्व हैं, तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो. मैं आपको वो केस भी डायरेक्ट बताऊंगा अगली एग्जांपल में, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ शो करेंगे. लेकिन यहां पर अभी हम अलग अलग शो कर रहे हैं. एग्जामिनर क्वेश्चन दोनों तरह से दे सकता है. ये इलेक्ट्रॉन पहले एक दो थे, दो में से एक गेन हो गया, एक बच गया, और नेक्स्ट स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, and finally it is converted into lithium oxide solid, और इसको आपको याद होगा कहते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम ऑक्साइड. लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन थी कि 1 मोल ऑफ आयनिक लैटिस फॉर्म with its constituent gaseous ions. 1 mole of ionic lattice form with its constituent gaseous ions, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लैटिस एनर्जी और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. यस मोहम्मद अम्मार. आप अपना माइक ऑन करें. सर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक क्यों होती है? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक क्यों होती है बेटा, इस बात को मैंने जब डिस्कस किया था तो उस वक्त भी आपको ये बात बताई थी. सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव इसलिए होती है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो वहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होता है, और जब नेगेटिव चार्ज वहां पर डेवलप होता है तो
incoming negative charge of electron and already negative charge of electron जो पार्टिकल पे होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्जन को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए वी नीड एनर्जी। और जब आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब यह है कि प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। मैंने पिछली क्लास के लेक्चर में भी जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करवाई है, उस वक्त ये पूरा लिखवाया भी था, लिखा भी था। आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा और चीज क्लियर हो जाएगी। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? जिसको क्वेश्चन करना है वो अपना माइक बेटा अनम्यूट करें। ओके, एक चीज और कुछ स्टूडेंट ने अपने साइकिल में मिस किया था, जो मैंने असाइनमेंट दिया था, वो ये वाला पार्ट कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, this is actually standard enthalpy change of formation, and when you make von Haber cycle you have to show this difference. So standard enthalpy change of formation of lithium oxide, ये एरो डाउनवर्ड इसलिए है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोर देन 99.9% केसेस में जो आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होती है। इसी वजह से जब हम जनरली बॉन हैबर साइकिल बनाते हैं तो प्रोडक्ट को नीचे रखते हैं और रिएक्टेंट को थोड़ा ऊपर रखते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट द ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका आई रिक्वेस्ट कि आप इसका फिलहाल स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास मौजूद हो, जब तक वो वीडियो अपलोड होती है फिर बाद में आप सुन सकते हैं उसको, लेकिन एटलीस्ट ये आपके सामने एक डायग्राम, एक फिगर मौजूद होगा, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, किसी बुक से पढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। राइट जी? shift to next. Right, now I'm taking an example of calcium sulfide. This is calcium sulfide solid. Now, in case of calcium sulfide, sulfur and oxygen both are the member of group 16. Both have 6 valence electrons. Now, if both have 6 valence electrons, then both need 2 more electrons to complete their outermost orbit. So that's why calcium is +2 and here sulfur is -2. Calcium is +2 and sulfur is -2. Okay, now first of all, I will write an equation just to understand what elements are required for the formation. Now here you have 2 options. Either you will write sulfur solid directly to make calcium sulfide solid, or you may write this equation in this form: sulfur 8 solid 1/8 to form calcium sulfide. ये दोनों इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। आपको याद होगा कि सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल, तो आप S8 के साथ अगर लिखेंगे तो यू विल राइट 1/8 हियर, ताकि ये बैलेंस हो जाए, बिकॉज प्रोडक्ट साइड पर एक ही सल्फर। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। राइट, नाउ लेट मी स्टार्ट
with calcium solid and sulfur solid. Step number 1 is atomization of metal. So calcium solid is converted into calcium gaseous, while sulfur remain as solid. And this equation represents, this change represents atomization of calcium. After atomization, we have to show ionization energies. So calcium will lose 1 electron first. So this is first ionization energy of calcium. Then it will lose 1 more electron. 1 more electron by making 2 positive plus sulfur solid. And this is for second ionization energy. After that, there is another step. Calcium तो already gaseous हो चुका है, आयन बन चुका है, electrons का loss हो गया है. But now sulfur will convert into sulfur vapors, and this step is known as atomization of sulfur. Solid directly turns to vapors. ये सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, इसलिए आप देखें कि एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. एरो इज मूविंग अपवर्ड. अब एग्जामिनर क्या करता है कि सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. तो सल्फर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो सम है वो एंडोथर्मिक होता है. उन दोनों का जो सम है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है, सेकंड का ज्यादा होता है. इस वजह से अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं कैल्शियम आयन गैसियस प्लस सल्फर 2 नेगेटिव गैसियस, अब ये जो स्टेप है ये है सम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये मैंने पिछली डायग्राम से ये डायग्राम मुख्तलिफ बनाई है, बिकॉज पेपर में एग्जामिनर दोनों तरीकों से आपको देता है डायग्राम. तो जब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अलग अलग शो करते हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एरो डाउनवर्ड होगा बिकॉज इट इज एक्सो, जबकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एरो होगा वो अपवर्ड होगा बिकॉज इट इज एंडो. लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सम करेंगे तो ओवरऑल चेंज जो आएगा वो एंडो आएगा, और ओवरऑल चेंज एंडो आने का मतलब ये है, ओवरऑल चेंज एंडो आने का मतलब ये है कि आपका एरो अपवर्ड होगा. और अब फाइनली लेटिस, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, और आपका प्रोडक्ट बन गया कैल्शियम सल्फाइड सॉलिड. और ये जो है दिस स्टेप रिप्रेजेंट्स standard enthalpy change of formula. So this is an other cycle, lattice energy cycle और या Born-Haber cycle, जो मुख्तलिफ इन कॉम्बिनेशंस को जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है. होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूं just to improve your understanding.
आप इसका बॉन्ड हैबिट साइकिल बनाएंगे, Na2S का बनाएंगे। Na2S के अलावा जो है वो आप फॉर्म करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यू विल मेक these, ठीक है, बॉन्ड हैबिट साइकिल फॉर Na2S सोडियम सल्फाइड एंड फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप बॉन्ड हैबिट साइकिल ट्राई करेंगे। और अब हम जो है वो कुछ अच्छा, ये मैं कुछ आपको क्वेश्चंस हैं रिलेटेड इससे, वो क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। अच्छा जी, अगर ये स्क्रीन शेयर हो रही है ओके बेटा, अगर आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है राइट जी, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये नवंबर 2 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखिए कि बॉन्ड हैबिट साइकिल बना हुआ है और उसके बाद उसने खैर कैलकुलेट भी करवाया है। पहले इस साइकिल को आप देखिए और मुझे ये बताइए कि जो मिसिंग कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे मैंने कहा था कि पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आपको कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए आ जाए, यहाँ साइकिल ऑलरेडी बना हुआ है एंड देयर आर सम पार्ट मिसिंग फ्रॉम द साइकिल। अब आप मुझे ये बताएंगे, लाइक अपना अगेन माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि व्हाट विल बी ए। क्या होगा? ओके साद रशीद, 2 moles of gaseous sodium. 2 मोल ऑफ गैसियस सोडियम, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हियर वी हैव 2 सोडियम,
यहां पर हमारे पास 2 सोडियम है, यहां पर हमारे पास 2 सोडियम है, तो दे विल कन्वर्ट इनटू 2 सोडियम गैसियस. नेक्स्ट, सोडियम गैसियस इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन. ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई. अब आप नेक्स्ट देखें कि यहाँ B लिखा हुआ है और अल्टीमेटली आपको पता है कि दिस इज एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो नाउ O2 gaseous will convert into O gaseous. So B will be O gaseous. Next, उसने क्या पूछा है स्पीशी. क्वेश्चन ये था कि स्पीशी A एंड स्पीशी B, वो हमने बता दिया. Now identify the enthalpy changes labeled number 1, 2, 3 and 4. अब labeled 1, 2 and 3, 4. labeled 1 में क्या हो रहा है? अगर आप देखें 1 में, तो सोडियम एटम इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन. सोडियम एटम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है. सो बेसिकली दिस इज नोन टू बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम. स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? अगर आप स्टेप नंबर 2 देखें, तो स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीजन is converted into O2 negative. यानी इसका मतलब है कि यहां पर एग्जामिनर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐड कर रहा है. इसीलिए आप देखें ओवरऑल एरो 1 बना रहा है और वो एंडो है, अपवर्ड है. और ये स्टेप रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नंबर 3 में क्या हो रहा है? नंबर 3 में क्या हो रहा है कि वो जो आयंस हैं, आयंस आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. दिस स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग लैटिस एनर्जी. और जबान खान, ओके. और स्टेप नंबर 4 जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. ये वही आइडिया है जो हमने किया था, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जरा डिफरेंट है. अतर हाशमी, अतर हाशमी, सर ये स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शो किया इन्होंने? इनकी मर्जी है बेटा, लेकिन हम जब बनाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे. अच्छा सही. हाँ, साइकिल उनका अपना है. और ये पुराना पेपर है बहुत, नवंबर का पेपर, नवंबर 2 का. तो उस जमाने में मतलब तरीका अलग होता था. तो जो चीजें अब हमें तो सिर्फ एक एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि एक आइडिया डेवलप हो.
लेकिन बहरहाल आपने इलेक्ट्रॉन शो करने जैसे मैंने कहा था। अच्छा जी, अब जो है वो इसी में ये नेक्स्ट पार्ट है और ये इस क्वेश्चन का जो है वो न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आप देखिए। नेक्स्ट हम इसके इस न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में use your cycle the following data and further data from the data booklet to calculate a value for the lattice energy of sodium oxide. अब आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो मैंने कहा था आपको कि सम है, सम ऑफ ऑल एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व। अब हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, ताकि चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए कि फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेल्टा एच इन्वॉल्व। अब जरा सोचिए कि हमने क्या क्या किया था। द फर्स्ट स्टेप इज एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम किया था प्रीवियस एग्जांपल में, और एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम मल्टीप्लाई बाय 2 था क्योंकि 2 मोल ऑफ सोडियम इन्वॉल्व थे, क्योंकि 2 मोल ऑफ सोडियम इन्वॉल्व थे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपको 2 मोल की करनी है। अच्छा, एक बात और देखें, आपको इस डेटा के अंदर कहीं भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन नहीं है, और इसकी वजह यह है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज डेटा फ्रॉम डेटा बुकलेट। तो पेपर में क्वेश्चन में आमतौर पर एग्जामिनर आपको ये नहीं देता आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज, वो आपको डेटा बुकलेट से पिक करनी होती हैं। आप सबको पता है कि डेटा बुकलेट में आयनाइजेशन एनर्जी का जो है वो पूरा डेटा मौजूद। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आप डेटा बुकलेट से लेंगे। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, एटोमाइजेशन। तो यहां पर होगा एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां उसने लिखा हुआ है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन फॉर ऑक्सीजन गिवन नहीं है। क्या गिवन है, हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी फॉर ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि अगेन आप डेटा बुकलेट से बॉन्ड एनर्जी पिक करेंगे और बॉन्ड एनर्जी को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो एटोमाइजेशन की वैल्यू होगी। तो ये डेटा भी आपको डेटा बुकलेट से मिलेगा, एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर एटोमाइजेशन ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है, तो हमें सम करना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसके अलावा जो लास्ट स्टेप था जिसमें लैटिस फॉर्मेशन थी, तो नेक्स्ट इज लैटिस एनर्जी। और सवाल में आपको लैटिस एनर्जी ही फाइंड करने को कहा गया है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है, यानी -414 ये वैल्यू गिवन है, एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम गिवन है,
आयनाइजेशन एनर्जी आप डेटा बुकलेट से पिक करेंगे, एटोमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन आप डेटा बुकलेट से निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आपको ऑलरेडी गिवन है, और लेटिस एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। ये एक सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पास पेपर के कई पेपर्स में आपको नजर आएगा, जहां एग्जामिनर बॉर्न हैबर साइकिल के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपसे कोई भी चीज इसमें से कैलकुलेट करवा सकते। यहाँ पर तो हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो फॉर्मेशन हमें गिवन थी और हम लेटिस कैलकुलेट कर रहे थे। कभी आपको वो लेटिस कैलकुलेट करवाएगा तो फॉर्मेशन गिवन होगी, फॉर्मेशन गिवन होगी तो लेटिस कैलकुलेट करवाएगा, या कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है। लेकिन डेफिनेटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से जो है आप इस इक्वेशन को अरेंज करें। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। जी बेटा। ठीक है जी, अब हम इसको एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, ये एक और सवाल आ गया, और इस क्वेश्चन में जो है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप देखिए। अब ये क्वेश्चन क्या है? use the following data to calculate a value for the lattice energy of silver bromide। और इससे ऊपर लिखा हुआ है कि write a chemical equation representing lattice energy of AgBr। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में कहा हुआ है कि लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सवाल जो है वो आता है। अब लेटिस एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन लेटिस एनर्जी के लिए आपको याद होगा कि 1 मोल ऑफ आयोनिक लेटिस फॉर्म with its constituent gaseous ions। Now these are the constituent gaseous ions। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है लेटिस एनर्जी ऑफ AgBr। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now come to next part के use the following data to calculate the value for the lattice energy of silver bromide। आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिल्वर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन, enthalpy change of atomization of silver, enthalpy change of atomization of bromine and formation। मैं जस्ट फार्मूला लिखूंगा, और फार्मूला क्या है कि फॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व। और ऑल द स्टेप्स में क्या क्या होते हैं, जस्ट टू रिकॉल कि पहला स्टेप एटोमाइजेशन होता है। एटोमाइजेशन यहाँ पे सिल्वर का होगा बिकॉज एटोमाइजेशन ऑफ मेटल होता है पहले। आफ्टर एटोमाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी which is already given। next, atomization of non-metal bromine जो हमें given है already। after atomization, first electron affinity of bromine ये भी given है। और finally lattice energy जो हमें calculate करने को कहा गया।
तो just put the values and you will get your answer. और होपफुली अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़िए कि हाउ माइट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ AgCl कंपेयर टू दैट ऑफ AgBr, एक्सप्लेन योर आंसर। एनीवन कैन आंसर? माइक को अनम्यूट करें। आपको कंपेयर करना है, ये मैं करवा चुका हूं कंपैरिजन। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की लेटेस्ट एनर्जी को कंपेयर करना है कि किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। एनीवन कैन आंसर? क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड में जो कॉमन बात है वो सिल्वर है। इसका मतलब यह है कि जो भी लेटेस्ट एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो आएगा ड्यू टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। Now chloride and bromide belongs to same group of periodic table, और जब ये दोनों सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में है तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे साइज, क्लोराइड पीरियोडिक टेबल में ऊपर और ब्रोमाइड नीचे है, तो क्लोराइड जो है स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, और जब क्लोराइड स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड तो इसका मतलब ये हुआ कि सिल्वर क्लोराइड हैज ग्रेटर पावर ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सिल्वर ब्रोमाइड। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सिल्वर क्लोराइड is greater than latest energy of silver bromide। ये तो कंपैरिजन हो गया, और अगर आप इसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो यही एक्सप्लेनेशन होगी कि क्लोराइड आयन is smaller as compared to bromide ion, therefore it has greater attraction, or greater attraction in silver chloride is observed as compared to silver bromide। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस टॉपिक जब मैंने लेटेस्ट एनर्जी का करवाया था उसमें ये बात कर चुका हूं। इट जस्ट अ रिकॉल के जो पुरानी बात हमने की थी ये क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में मौजूद है। ये 2005 का क्वेश्चन है पेपर 4 का, उसका एक मैंने जो है वो एक्सट्रैक्ट लिया है। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं जी कोई बात स्टिल ऐसी है जो क्लियर नहीं है या आपको पूछनी है तो प्लीज आस्क, और आपको मैं इसी में कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिकमेंड करूंगा सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है, पेपर कौन सा है ये मैं देख लेता हूं। यस, ये नोट कर लीजिए, नवंबर 9 का पेपर है ये। ये क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, आप उसका पेपर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो। नवंबर 9 का ये पेपर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2। नवंबर 9 पेपर 41 क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 91 का जो है ये आपको, ये आप नोट कर लें अपने पास। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक तो ये हो गया, इसका ये पूरा पार्ट आपने कंप्लीट करना है, और
उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है जून 11 का, ये जून 11 का क्वेश्चन है। जून 11 41 क्वेश्चन 1। तो एक मैंने आपको कहा नवंबर 9 41 क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया जून 11 41 क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपका होमवर्क हैं, जो आप मुझे सबमिट नहीं करेंगे सॉल्व करके। नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम होगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉर्न हैबिट साइकिल एंड देयर न्यूमेरिकल्स, आप सॉल्व करेंगे। मैं आज एक असाइनमेंट डालूंगा आपके ग्रुप पर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। उस असाइनमेंट को सॉल्व करके आप मुझे सबमिट करेंगे इस वीकेंड पर, कोई कभी भी कर सकते हैं, यानी कि बिफोर द नेक्स्ट क्लास। तो ये वाले 2 क्वेश्चंस और इसके अलावा एक असाइनमेंट मैं सब पुट कर रहा हूं, वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है नेक्स्ट क्लास से पहले। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। तो अब इंशाल्लाह जो है वो आपसे बात होगी नेक्स्ट क्लास में।